Assalamu alaikum, my dear students. Today we'll be discussing a very important concept, that is nitrogen fixation. Before we go deep into the subject, let me tell you few important things which you must know before going into the details of this. Okay, let's begin at the beginning. Nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere. By volume, it contributes more than 78%. Nitrogen, dinitrogen, what we call as nitrogen gas, N2. Nitrogen gas is the most abundant gas in the atmosphere. By volume, it contributes more than 78%. Okay, this nitrogen gas, though it is the most abundant gas in the atmosphere, but plants and animal systems, they cannot find a way to make its direct use, because this nitrogen gas behaves like N triple bond N. These three are here covalent bonds, very strong bonds. Two nitrogen atoms are joined together by strong triple covalent bond, and this nitrogen gas is a very stable molecule, very inert molecule, and plants and animal systems have no ability, no enzyme system within, so that they can break down this nitrogen gas molecule and can use in the metabolic processes. So due to this fact that being this nitrogen gas being the inert and also very stable, highly stable rather we say, plants find it very difficult to make its direct use in the metabolism. It means though nitrogen gas is most abundant in atmosphere, प्लांट सिस्टम्स को फिर भी प्रॉब्लम होती है कि इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं. क्यों? ये बड़ा इनर्ट मॉलिक्यूल है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है. प्लांट्स के पास ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं जो इस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करे, इसके बाद इसको ये कंज्यूम कर पाए मेटाबॉलिज्म में. तो प्लांट्स के लिए ये नाइट्रोजन गैस इट हैज़ नो डायरेक्ट इम्पोर्टेंस. लेकिन फिर कैसे प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं इस नाइट्रोजन गैस को? क्योंकि प्लांट नाइट्रोजन के बगैर जी नहीं सकता है, सर्वाइवल इसका एट द स्टेक होगा. बिकॉज वी नो नाइट्रोजन इज द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं, इम्यूनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है, वी हैव एटीपी मॉलिक्यूल उसमें नाइट्रोजन होता है. वो नाइट्रोजन के बगैर काम नहीं चलेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. तो प्लांट्स कैसे नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं? Though it is the most abundant gas in atmosphere, but it is inert and highly stable molecule. प्लांट्स के पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जिसकी मदद से ये नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर पाए और इसको मेटाबॉलिज्म में ला सके. तो लेकिन दुनिया के अंदर ऐसे कुछ प्रोसेसेस है जिनके थ्रू नाइट्रोजन गैस को तब्दील किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है ऐसे फॉर्म्स में, ऐसे मतलब चीज़ों के अंदर जो प्लांट डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता है. वो हम देखेंगे कैसे नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स में when before it is basically being converted to some usable forms. We'll be going into the details of this. Okay, और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बोलूं कि प्लांट्स और माइक्रोब्स के बीच कंपटीशन लगता है सॉइल के अंदर. फॉर एग्जांपल दिस सॉइल हियर, यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे माइक्रोब्स है, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजे, व्हाटएवर. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी चाहिए नाइट्रोजन, प्लांट्स को भी चाहिए नाइट्रोजन. नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट ऑलरेडी सॉइल में होता है, क्योंकि ये दूसरे न्यूट्रिएंट्स की तरह नहीं है विच बी इन अबंडेंस इन द सॉइल. बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी होती है सॉइल के अंदर. बिकॉज कैसे होती है डिफिशिएंसी पैदा सॉइल के अंदर? प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए, दिस माइक्रोब्स को भी नाइट्रोजन चाहिए. Every organism needs nitrogen. These microorganisms, microbes, bacteria and fungi, they compete with the plants for this nitrogen in the soil. That's why we find nitrogen as the deficient, one of the limiting nutrient in the soil, both in natural ecosystems as well as in agricultural ecosystems. तो अगर मैं आपको 2-3 पॉइंट्स पहले लिखाऊं, आप लिखो पहला पॉइंट, नाइट्रोजन गैस इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर. ब्रैकेट में लिखो 78% by volume. Nitrogen gas is the most abundant gas in atmosphere
ब्रैकेट में लिखो 78% बाय वॉल्यूम। ओके, नीचे लिखो 2 नाइट्रोजन एटम्स are together joined by triple covalent bond. That is, it is highly stable and inert molecule. That is, it is highly stable and inert molecule, and plants have no enzyme. And plants have no enzyme to break it. And plants have no enzyme to break it. हाँ, नीचे आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। शाबाश। प्लांट्स और किसके बीच कंपटीशन लगता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बीच। दैट्स व्हाई इट बिकम्स लिमिटिंग इन बोथ इन नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स। आप लिखेंगे तीसरा पॉइंट, लिखो प्लांट्स compete with microbes in soil. Plants compete with microbes in soil for nitrogen. That's why nitrogen becomes limiting means deficient. That's why nitrogen becomes limiting both in natural and agricultural ecosystems. Okay, done. अब आते हैं असली पॉइंट पे। देख लीजिएगा यहां, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, you know, nitrogen fixation means the conversion. It's a conversion of what? It's a conversion of N2 nitrogen gas into what? Into those forms which can be easily used by plant, which can be easily utilized by plant. नाइट्रोजन को तब नाइट्रोजन प्लांट इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है कभी। क्यों? मैंने भी बोला रीजन, इट हैज हाईली स्टेबल नेचर, इनर्ट नेचर। इसको कन्वर्ट किया जाता है, या तो इसको कन्वर्ट किया जाता है NO3 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट, आगे बोलूंगा इसके बारे में, या तब्दील किया जाएगा NH3 व्हाट यू अदरवाइज कॉल्ड अमोनिया। नाइट्रोजन गैस को तब्दील करना किसमें? नाइट्रेट में या अमोनिया में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाम नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप क्या लिखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 इनटू NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रेट, NITRAT, नाइट्रेट। कन्वर्जन ऑफ N2 गैस इनटू नाइट्रेट NO3 नेगेटिव और NH3 अमोनिया इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। शाबाश, लिखेंगे पॉइंट आप। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट NO3 नेगेटिव ओब्लिक NH3 इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाँ, नीचे लिखो आप, N2 गिव्स NO3 नेगेटिव यह है नाइट्रेट, ओब्लिक NH3 दिस इज अमोनिया। ओके, तो कैसे प्रोसेस किया जाता है? दो तरीकों से। किस प्रोसेस में बनता है N2 से नाइट्रेट और किस प्रोसेस में बनता है N2 से अमोनिया, ये बोलता हूं आपको शॉर्टली। देख लीजिएगा, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, दो तरीकों से ये हो सकती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के दो तरीके हैं। एक तरीका है व्हाट वी कॉल फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ओब्लिक इसको हम बोल सकते हैं नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल और नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरे को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अदरवाइज कॉल्ड डायएज़ोट्रॉफी, DIAZO okay, something here, TROPHY, diazotrophy. Physical nitrogen fixation or non-biological nitrogen fixation. Another is biological nitrogen fixation or diazotrophy. क्या होता है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में? N2 जो गैस होता है एटमॉस्फेयर का, इट इज कन्वर्टेड टू, इसको तब्दील किया जाता है NO3 नेगेटिव में, मीन्स नाइट्रेट। मैंने भी बोला था NO3 नेगेटिव मीन्स नाइट्रेट। कन्वर्जन ऑफ N2 टू NO3 नेगेटिव। हाँ, ये किस तरह से
N2 तब्दील हो जाएगा नाइट्रेट में। ये तो एटमॉस्फेयर में प्रोसेस होता है। लाइटनिंग नो वुजमल गसान दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा जो एनर्जी आती है जब बादल आपस में टक्कर खाते हैं, विद रिजल्ट स्पार्क जनरेट होता है, उस वक्त इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है N∠N, ऐसे N∠N, लाइटनिंग की वजह से ब्रेक होता है, इट ब्रेक्स डाउन। क्या बनता है? N फ्री रेडिकल प्लस N, ये दो N अलग अलग होते हैं लाइटनिंग की वजह से। लाइटनिंग सोर्स ऑफ हाई एनर्जी, दैट्स ओके सफिशिएंट टू ब्रेक दिस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये इस मॉलिक्यूल जो स्टेबल मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज कर देता है। तो N अलग निकलता है, N अलग निकलता है, ये फ्री रेडिकल बन गए, फ्री रेडिकल। वही हाल होता है ऑक्सीजन का, O2 भी है ना एटमॉस्फेयर में, उसको भी फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। विद रिजल्ट ये जो N है फ्री रेडिकल, यहाँ O2R भी हमारे पास होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, और कुछ O2 को हाल होता है O अलग, O अलग। ये अगर इसकी मिलेगा O3, वो O3 मिलेगा N के साथ NO3 नेगेटिव मिलेगा। एटमॉस्फेयर में रिएक्शन होती है। विद रिजल्ट किस वजह से हो सकती है? इट कैन ऑकर बाय मींस ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब क्या? वुजमल गसने, ओके, लाइटनिंग, या इवन यूवी रेज कैन डू द जॉब, ओके, यूवी रेज कैन डू द जॉब। कन्वर्जन ऑफ व्हाट? N2 gas into nitrate, NO3 negative. Conversion of N2 gas into nitrate by physical processes, physical mechanism. We can have lightning or we can have UV rays. इनमें बहुत सफिशिएंट एनर्जी होती है जो इस N2 ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर पाते हैं, एंड इट्स कन्वर्टेड टू नाइट्रेट। तो ये प्रोसेस आपको क्या लगता है? इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? नाइट्रोजन तब्दील हो गया नाइट्रेट में, ऐड क्या हो गया? ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ओके, इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन, देखो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, नाइट्रेट बन गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो दुनिया के अंदर 10% नाइट्रोजन फिक्सेशन इस तरीके से, 10% ऑफ टोटल फिक्सेशन ऑकर्स बाय दिस मैकेनिज्म। दुनिया के अंदर जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है 10% इसमें होता है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? N2 इज कन्वर्टेड, इट्स कन्वर्टेड टू NH3, NH3 के अंदर कन्वर्ट किया जाए, NH3 इज अमोनिया। यहाँ फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में N2 को तब्दील किया गया नाइट्रेट में, यहाँ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में N2 को तब्दील किया गया अमोनिया के अंदर। यहां किस मदद के थ्रू? बाय मीन्स ऑफ फिजिकल फोर्सेस, वी कैन हैव लाइटनिंग और यूवी रेज। यहां पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल, यहां पे ये काम करते हैं प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स। उनमें क्या होता है? उनमें एक एंजाइम होता है जिसके बारे में इंशाल्लाह तज़किरा होगा। उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेस। ये किसी एनिमल में नहीं है, ये किसी प्लांट में नहीं है एंजाइम। दिस एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू प्रोकैरियोट्स ओनली। कोई यहाँ पे प्रोकैरियोट्स करते हैं, मैंने बोला प्लांट नहीं कर सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एनिमल नहीं करते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सलाहियत है, एबिलिटी है नाइट्रोजन को तब्दील करने की अमोनिया के अंदर। प्लांट सिस्टम्स, एनिमल सिस्टम, दे आर डिपेंडेड अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स, फॉर दिस biological nitrogen fixation, because no plant, no animal by itself can perform biological nitrogen fixation. It is the job of few prokaryotes only. ये कन्वर्ट कर सकते हैं, इनमें एक सलाहियत है नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो किसी प्लांट या एनिमल में नहीं है दुनिया में। ये एबिलिटी कि N2 को तब्दील करना NH3 के अंदर, ये एबिलिटी है नाइट्रोजिनेस में, विच इज एंजाइम रिस्ट्रिक्टेड ओनली फ्यू प्रोकैरियोट्स। आगे तज़किरा करेंगे इस बारे में। तो इसको थोड़ा कंपेयर करेंगे। N2 को तब्दील किया गया नाइट्रेट में, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, N2 को तब्दील किया गया अमोनिया में। तो यहाँ पे किस मदद से? लाइटनिंग और यूवी रेज, फिजिकल फोर्स। यहाँ पे किस मदद से? प्रोकैरियोट्स की मदद से, खास प्रोकैरियोट्स। बोलेंगे कौन कौन? उनमें क्या होता है? खास नाइट्रोजिनेस। ओके, ये प्रोसेस क्या था? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किस, इसमें N2 है, तब्दील हो गया नाइट्रेट में, एडिशन ऑफ ओ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस था। यहां पे देखो N2 ऐड क्या हो गया? हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इट इज अ रिडक्शन प्रोसेस। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ रिडक्शन प्रोसेस। ओके, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ रिडक्शन प्रोसेस में ऐड होता है हाइड्रोजन। ओके,
तो दुनिया के अंदर 10% तरीका यह है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, तो बाकी क्या बच गया 90% टोटल ऐसे होता है। 90% ऑफ टोटल फिक्सेशन, 90% of total fixation occurs by biological means, by means of diazotrophy. This is a mechanism. Okay, तो हमने क्या अब देखा, इसमें क्या सीखा हमने कि दुनिया के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ N2 टू नाइट्रेट और अमोनिया। क्यों बोलते हैं हम नाइट्रेट और अमोनिया? बिकॉज दो तरीके हैं, वन इज फिजिकल प्रोसेस जहां पे N2 तब्दील होता है नाइट्रेट में, और another is biological process where N2 is converted to ammonia. This physical nitrogen fixation is performed by lightning or UV rays by some physical force, and this biological nitrogen fixation is performed by some few prokaryotes, we say, which have a specialty that they have nitrogenous enzyme restricted to only these prokaryotes. And this is an oxidation process because there is an addition of oxygen, that is an reduction process, addition of hydrogen, and it contributes 10% of total, and this one 90% of total. Okay, तो आगे चलते हैं। अब देख लीजिए बेटे, एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे बोलूँगा आपको, इससे बाहर है, शाबाश। वो ये आपने शायद पढ़ा होगा प्रोकैरियोट से, मुनीरा आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाऊंगा नॉस्टॉक। नॉस्टॉक आपने देखा है, नॉस्टॉक। ओके, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक क्या है? एक एडिशनल पॉइंट है, इंटरेस्ट में आ सकता है कभी। नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन अलगा है, व्हाट वी कॉल साइनोबैक्टीरिया। ओके, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी एक है। ओके, ब्लू ग्रीन अलगा। तो ब्लू ग्रीन अलगा, इसमें क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया व्हाट वी कॉल, ये प्रोकैरियोट से बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का खास एक ग्रुप है। इनमें सेल्स होते हैं बने हुए ऐसे, इनमें होती है सेल्स की एक चेन, ट्राइकोम व्हाट वी कॉल्ड, चेन ऑफ सेल्स ऐसे। दिस इज नॉस्टॉक, ए चेन ऑफ सेल्स आर देयर। इसमें क्या होते हैं, इस चेन में कुछ सेल्स जो है दे आर थिक वॉल्ड। क्या होते हैं? थिक वॉल्ड। Few cells in this chain of nostoc, filament of nostoc, they are thick walled, बहुत ज़्यादा थिक वॉल होता है इनको। ऐसे सेल्स को हम नाम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट्स। हेटेरोसिस्ट्स, CYSTS, हेटेरोसिस्ट्स। इस हेटेरोसिस्ट के अंदर क्या होता है, इस हेटेरोसिस्ट के अंदर होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि इस हेटेरोसिस्ट के अंदर मौजूद होता है वो नाइट्रोजिनेज। नॉस्टॉक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नॉस्टॉक एक प्रोकैरियोट है, एक बैक्टीरिया है। इसके अंदर खास किस्म के सेल्स, थिक वॉल्ड सेल्स, मोटे सेल्स, मोटे वाले सेल्स, दीज थिक वॉल्ड सेल्स आर कॉल्ड हेटेरोसिस्ट्स। इनमें होता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम, तो वो नाइट्रोजन एंजाइम क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मीन्स in case of prokaryotes like cyanobacteria, nostoc, special thick walled cells called heterocysts are responsible for nitrogen fixation. ये करते हैं biological nitrogen fixation, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इसमें नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो एक्टिव रहता है इन सेल्स के अंदर। तो नाइट्रोजन, तो आप लिख सकते हैं इन साइनोबैक्टीरिया ओब्लिक ब्लू ग्रीन एल्गी like nostoc, special thick walled cells called heterocysts perform nitrogen fixation. ओके, हाँ, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, अगर हम देखेंगे अब ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये होती कैसे है, तो हम लिखेंगे नीचे हम लिखेंगे, अंडरलाइन करो आप, मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या डायजोट्रॉफी। मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, डायजोट्रॉफी जिसको हम बोलते हैं। शाबाश। जनरल इक्वेशन क्या है हमारे लिए, हमारे पास जनरल इक्वेशन है N2 इज कन्वर्टेड टू NH3, ऐसे हम लिखते हैं ना। दिस इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। किस मदद से? इट ऑकर्स बाय मीन्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। इनमें क्या होता है, नाइट्रोजिनेस। हम इसी रिएक्शन को थोड़ा करेंगे पेश इन डिटेल, थोड़ा इसमें देखेंगे ये नाइट्रोजन कहाँ से आ गए, ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गए, एनर्जी कहाँ से आ गए। लेट्स सी, हमारे पास ओके वी हैव N2, यहाँ पे भी है नाइट्रोजन। वी हैव प्लस 8 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 टाइम्स H पॉजिटिव प्रोटॉन्स
plus 16 times ATP, this is a source of energy, it gives, हाँ क्या लगेगा इसमें, प्रोकैरियोट्स लगेंगे, प्रोकैरियोट्स, उनमें क्या होगा खास, नाइट्रोजिनेस एक एंजाइम है, नाइट्रोजिनेस। मिलेगा क्या हमें, मिलेगा इसमें, मैं यहाँ पर लिखूँगा इसके प्रोडक्ट्स, वी हैव NH3 twice plus hydrogen H2 hydrogen gas plus 16 times ADP plus 16 times P inorganic PI what we call। देखिए ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, एक डिटेल्ड मैकेनिज्म ऐसा है, कहाँ पे अगर हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, सिंप्लीफाइड वर्जन हम देखिए N2 इज कन्वर्टेड टू अमोनिया। देखिए होता क्या है, N2 यहाँ पे भी N2, यहाँ पे N2 है, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, मतलब हो गया 8 हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल जब आप H लिखते हो ना, H मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है, हाइड्रोजन जो पहला पीरियड टेबल में आपका पहला एलिमेंट है, हाइड्रोजन में होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन एक हाइड्रोजन में। तो अगर हम देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, क्या हो गया 8 हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन में होता है, एक हाइड्रोजन में क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन इज इक्वल 1 हाइड्रोजन, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन इज इक्वल 8 हाइड्रोजन्स, है कि नहीं, शाबाश। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो नाइट्रोजन गैस 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, हम बोल सकते हैं ना इट इज 8 हाइड्रोजन्स, सही बात है, प्लस 16 ATP सोर्स ऑफ एनर्जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी सोर्स, इन प्रेजेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया एंड ऑल दैट व्हाट वी कॉल। तो क्या मिल गया आपको, देख लीजिएगा, N2 2 नाइट्रोजन, यहां देखो 2N, वो ये N और ये N बराबर आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, क्या हो गया 8 हाइड्रोजन, 3 2s are 6 है ना, H3 2s है ना, 2H3 ये 2s है ना, वो ना तेट्रागोनशा या 3 2s are 6 गए बराबर इमते, 3 2s are 6, 6 हाइड्रोजन, यहाँ कितने थे 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, हो गए 6 यहाँ पे, 3 2s are 6 यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, वो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं 6 हाइड्रोजन, कस पर ज तम गए H2 ये क्या गए बराबर ज, 6 हाइड्रोजन इम गए 2 हाइड्रोजन बे गए 8, ये ना 8 है गए हाइड्रोजन ते बराबर, पकते ब्रोट 16 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 16 ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एक और कहाँ गया वो 16 PI अलग, ये ATP ब्रेक होता है, इट ब्रेक्स डाउन, ATP ब्रेक्स डाउन टू ADP और वहाँ पे फॉस्फेट अलग निकलते हैं, जितने ATP थे उतने ADP बनेंगे, क्योंकि हर एक से एक एक फॉस्फेट बाहर निकल लेगा, तो 16 से निकलेंगे 16, वो 16 PI। दिस इज द एक्चुअल रिएक्शन ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है ये, दैट आपको कितने ATP मॉलिक्यूल, अगर मैं आपको बोलूँ देखो कितने ATP मॉलिक्यूल्स लगते हैं 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल बनाने के लिए लगते हैं हमारे पास 16 ATP मॉलिक्यूल्स, तो एक अमोनिया को कितने लगेंगे, अगर 2 को लगे 16, एक अमोनिया को 8 लगेंगे। फॉर ईच अमोनिया मॉलिक्यूल to get produced in biological nitrogen fixation 8 ATP is produced, I mean utilized, तो 2 अमोनियास के लिए 16 ATP, एक अमोनिया के लिए लगेगा 8, ओके 8 लगेंगे ना। हाँ, तो करता कौन है ये रिएक्शन, इट इज नाइट्रोजिनेस, ये नाइट्रोजिनेस करता है। नाइट्रोजिनेस के बारे में थोड़ा बोलूंगा, इसी के साथ है वी आर डिस्कसिंग मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाँ, तो हमारे पास एंजाइम क्या है नाइट्रोजिनेस। हाँ, ये जो ये नाइट्रोजिनेस है, नाइट्रोजिनेस क्या है, एक एंजाइम है जो किन में होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, कुछ ही प्रोकैरियोट्स के अंदर, सारों में नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा नाइट्रोजन के बारे में आप लिखो पॉइंट। नाइट्रोजन है क्या, शाबाश, ये एंजाइम है, शाबाश, ये एक एंजाइम है, किन में मौजूद होता है, ये सिर्फ फ्यू प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। इस नाइट्रोजिनेस एंजाइम को, हर एंजाइम हर प्रोटीन को कोड करता है, खास उसका जीन, जो जीन कोड करता है, बनाता है इस एंजाइम को, दैट्स कॉल्ड NIT
NF निफ जीन नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर हम इसको बोलते हैं, जरूरत नहीं है ये। NF निफ जीन नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर, ये जीन का नाम है नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर। निफ जीन, यही जीन कोड करता है, बनाता है किस एंजाइम को, नाइट्रोजिनेस को। दिस निफ जीन इज प्रेजेंट ओनली इन फ्यू प्रोकैरियोट्स। दिस निफ जीन इज प्रेजेंट ओनली, आप बोलेंगे ये नाइट्रोजन एंजाइम क्यों है सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर, कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर? क्योंकि हर एक एंजाइम को कोड करता है खास किस्म का जीन, खास किस्म का DNA का हिस्सा होता है। वो जीन, ये जो नाइट्रोजनस बनाने वाला जीन है, दिस जीन डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्लांट्स नॉर इन एनिमल्स, बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली फ्यू प्रोकैरियोट्स। जिन प्रोकैरियोट्स के अंदर, जिन बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होगा ये निफ जीन, उन्हीं में बन सकता है नाइट्रोजनेस। प्लांट्स हैव नो दिस जीन, एनिमल्स हैवंट दिस जीन, विद द रिजल्ट नाइट्रोजनेस एंजाइम is present only in few prokaryotes because it is coded by NIF gene, which has a very limited restriction to few prokaryotes. तो हम क्या लिख सकते हैं, शाबाश, नाइट्रोजिनेस एंजाइम is coded, अब लिखो, नाइट्रोजिनेस एंजाइम is coded by NIF gene. NIF means nitrogenase inducing factor. Nitrogenase inducing factor. Okay. Nitrogenous enzyme is coded by NIF gene, काम करके, which is restricted, which is present only in few prokaryotes, which is restricted to only few prokaryotes. Okay, कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। हाँ, इस नाइट्रोजिनेस में क्या होता है, ये नाइट्रोजिनेस बना हुआ है दो कंपोनेंट्स का, इसमें दो हिस्से होते हैं। नाइट्रोजिनेस में होते हैं दो कंपोनेंट्स। आप देखो नीचे, नाइट्रोजिनेस इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, दिस एंजाइम हैज टू कंपोनेंट्स। नाइट्रोजिनेस हैज टू कंपोनेंट्स, क्या क्या? आयरन, Fe मींस आयरन, आयरन प्रोटीन पार्ट, एक पार्ट क्या होता है, आयरन प्रोटीन पार्ट। दूसरा MO मींस मोलिब्डेनम, एलिमेंट है कि मोलिब्डेनम MO, Fe मींस आयरन प्रोटीन पार्ट, molybdenum iron protein part. First part is iron protein part, another is molybdenum iron protein part, means प्रोटीन का हिस्सा इसके साथ आयरन है, दूसरा हिस्सा है इसका molybdenum iron protein part. फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूं, ये वाला एक हिस्सा है इसका, ये प्रोटीन है, साथ में क्या है, आयरन। ये वाला एक और हिस्सा है, फॉर इंस्टेंस ऐसे, इसमें आयरन भी है, molybdenum में प्रोटीन सारा है, बाकी प्रोटीन के साथ molybdenum और आयरन, प्रोटीन के साथ आयरन। दिस इज स्मॉलर पार्ट इज दिस। ओके, हम लिख सकते हैं दिस पार्ट इज स्मॉलर, ये क्या है, ये बड़ा है। ओके, दिस इज लार्जर पार्ट। देखिए मसला क्या है, ये वाला पार्ट हो या ये वाला पार्ट हो, आयरन प्रोटीन पार्ट हो या molybdenum आयरन प्रोटीन पार्ट, दोनों ये जब मिलते हैं नाइट्रोजन से एंजाइम बनता है। हाँ, आयरन प्रोटीन पार्ट जब मिलता है, molybdenum आयरन प्रोटीन पार्ट जब ये आपस में मिलते हैं और कंप्लीट एंजाइम बनता है नाइट्रोजनेस, तभी ये काम करता है, अलग अलग ही काम नहीं कर सकते। लेकिन ऑक्सीजन इस पे आए, ऑक्सीजन इस पे अटैक करे, दोनों को, इस कंपोनेंट को या हम बोल सकते हैं सारा नाइट्रोजनेस, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ऑक्सीजन से, बिकॉज इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। मीन्स ऑक्सीजन की वजह से इन दोनों की शेप बिगड़ जाती है, ख़त्म हो जाता है, स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजनस काम नहीं कर सकता है, ऑक्सीजन इसको बर्बाद करता है, खत्म कर देता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब नाइट्रोजनस काम ही नहीं करेगा, ना ये कंपोनेंट ना ये कंपोनेंट, बल्कि सारा नाइट्रोजनस ही बिगड़ जाता है, इसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करेगा नाइट्रोजनस, मीन्स नाइट्रोजनस वर्क्स ओनली इन एनारोबिक कंडीशंस, जहां ऑक्सीजन होगा नहीं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है अब, एरोबिक एनारोबिक? एनारोबिक, बिकॉज दिस नाइट्रोजनस वर्क्स ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को खत्म करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए स्ट्रिक्ट एनारोबिक प्रोसेस। वाई? बिकॉज नाइट्रोजनस इज डीएक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम क्या लिख सकते हैं, नीचे लिखो, आयरन प्रोटीन पार्ट, molybdenum आयरन प्रोटीन पार्ट, दिस पार्ट इज स्मॉलर, दिस पार्ट इज लार्जर। नीचे लिखो, both these subunits means ये यूनिट और ये यूनिट, both these subunits are sensitive to O2, are sensitive
to O2 are sensitive to oxygen. That is IE. That is biological nitrogen fixation is strictly anaerobic. That is biological nitrogen fixation is strictly anaerobic. Yeah, biological nitrogen fixation requires anaerobic conditions. Absence of oxygen ही होना चाहिए ताकि ये प्रोसेस ऑपरेट हो जाए, बिकॉज ऑक्सीजन की वजह से नाइट्रोजनस खत्म होता है. समझा रहा है? शाबाश. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. थोड़ा इसके बारे में हमने आज जाना, तो अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह. इसी टॉपिक को आगे ले जाएंगे. नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी और मुझे लगता है 2-3 लेक्चर्स में लगेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम इसके आगे. व्हाट वी कॉल डायज़ोट्रॉफ्स, वो सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, एसिम्बायोटिक. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखें. थैंक यू.